Okay, good morning, students. Welcome to the history class. We are into the fifth chapter, and that is eyes of through the eyes of travelers. Okay, and we are learning about India through the accounts of different travelers. ये different periods में जो different travelers बाहर से इंडिया आए, उन्होंने इंडिया के बारे में जो लिखा, उनसे हम उस समय के इंडिया के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली स्टडिंग थ्री ट्रैवलर्स. वी आर स्टडिंग अल ब्रूनी who traveled in 11th century. He was from Uzbekistan. We are trying to learn about India through the accounts of Ibn Battuta, who traveled to India in 14th century. He was from Morocco. And today we'll be starting the obviously we'll try to learn from the accounts of Franco Bernier. Franco Bernier, he was a Frenchman, he was from France, and he came to India in the 17th century. This is the period when obviously Mughals were ruling India. So he visited Mughal India and he wrote his accounts in what is called as Travels in the Mughal Empire. तो उन्होंने उस समय के इंडिया के बारे में जिक्र किया है in his travels in the Mughal Empire. Okay. Now, his accounts are really different from what we have learned till now. Ibn Battuta and Al-Bruni, they saw a lot of peculiar things in India. They were excited by India and they found India very interesting. In fact, Ibn Battuta's description about India and how things used to happen in India, he described Indian cities as very vast, very colorful, with lots of goods. That is how he described Daulatabad, he described Delhi of that time. But this is also a different time period. This is Mughal India in the 17th century. तो काफ़ी टाइम डिफरेंस भी है इब्न बटूटा के डिस्क्रिप्शन और बर्नियर के डिस्क्रिप्शन में. नाउ बर्नियर हैज़ गॉट अ डिफरेंट स्टाइल. ही इज़ प्री ऑक्यूपाइड विद वन थिंग. ही इज़ कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग इंडिया with the Europe of that time, or we can call it contemporary Europe, जो सेम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं. ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी वर्ड यूज़ करते हैं हम उनके लिए. तो उस समय का जो यूरोप था और उस समय का जो इंडिया था, उसे कॉन्स्टेंटली उन्होंने कंपेयर किया है. सो वॉट एवर ही सॉ इन इंडिया, ही कंपेयर्ड इट विद द वेस्ट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वाज हिज कंक्लूजन? His conclusion was that India was inferior to the Western world. जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, यूरोप है, वो सुपीरियर है और इंडिया इन्फीरियर है. उसके कई सारे उन्होंने रीजन्स भी दिए हैं. एंड आउट ऑफ दोज रीजन्स वन रीजन विल बी स्टडिंग इन डिटेल. ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज ट्राइंग टू डू. According to Bernier, one of the fundamental differences between Mughal India and Europe, आखिर डिफरेंस क्या है? वाई इज कॉलिंग इंडिया इन्फीरियर? उसका कोई रीज़न भी तो होगा. एंड द रीज़न दैट ही गिव्स वाज, ही सेज दैट वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन मुगल इंडिया एंड यूरोप वाज द लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ लैंड. तो इंडिया में लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, वो अपने ज़मीन के मालिक नहीं हैं. लोगों के पास ज़मीन तो है, बट they are obviously, that land has been given to them by the nobles. Okay, this land does not belong to them. इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, आई विल गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड. एंड दैट एग्जांपल वुड बी, सपोज somebody is staying in a rented apartment. Will he take care of that apartment? If something, obviously, will he obviously do the whitewash there? Will he do the repair work there? He will not, because he knows it. This is a rented accommodation. This place does not belong to me. So why should I invest in this? This obviously house will not pass on to my children. I'm here, staying here. My children will not be staying here. This property will not be their property. This is on rent, and this is temporary. So why should I invest in that? The similar thought process was with the peasants of that time. उस समय के फार्मर्स ने भी यही सोचा कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, इस सीज़न में हमारे पास है, मे बी नेक्स्ट सीज़न में हमारे पास रहेगी या नहीं रहेगी. और इवेंचुअली वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि ये ज़मीन हमारे बाद हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे
चिल्ड्रन, ऑब्वियसली उनके पास तो नहीं जाने वाली. सो देयर वाज नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग इन दिस लैंड, देयर वाज नो पॉइंट इन डेवलपिंग दिस लैंड. अगर इसका सॉइल फर्टाइल नहीं है तो इसके सॉइल को फर्टाइल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो हम अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये लंबे समय तक ज़मीन हमारे पास रहने वाली है नहीं. इसका सॉल्यूशन ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने निकालने की कोशिश की थी बंगाल में, एंड उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे. दैट इज़ इन थर्ड बुक, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो. एंड दैट इज़ वेयर विल ट्राई एंड लर्न कि ब्रिटिशर्स ने फिर क्या नई टेक्निक्स, नए तौर तरीके निकाले. बट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड बर्नियर का मानना है कि क्योंकि क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड है, हर ज़मीन, जितनी भी ज़मीन है दैट बिलोंग्स टू द किंग, किंग ने वो ज़मीन ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है अमंग्स द नोबल्स, एंड नोबल्स हैव देयरफॉर फर्दर पास्ड इट ऑन टू द पीजेंट्स. तो पीजेंट से वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, टैक्स या रेंट उसे कलेक्ट करते हैं ये नोबल्स, और उसे कलेक्ट करके वो किंग तक पहुंचाते हैं. तो क्योंकि ज़मीन किसानों की नहीं है, ऑब्वियसली द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड हैज़ देयरफॉर प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ अ क्लास. एक मिडिल क्लास उभर कर नहीं आ पाई है, और इस मिडिल क्लास को उन्होंने कहा है इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में हुआ. ओके, ये वो लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने ज़मीन को इम्प्रूव किया. ऐसा इंडिया में नहीं हुआ. एंड विद अ कंसर्न टू मेंटेन और इम्प्रूव द लैंड. तो यहाँ पर किसानों का इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ऐसा कोई क्लास नहीं है जो कि ज़मीन को इम्प्रूव करे या उसमें इन्वेस्ट करे और उसे मेंटेन करे. इट हैड लेड टू द यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर रुइन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. एक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, ऑब्वियसली किसानों को बहुत सताया जा रहा है. एंड अ कंटिन्यूस डिक्लाइन in the living standard of all sections of society. When peasants will not be able to grow a good crop, वो ठीक से अपना ऑब्वियसली गुजर बसर भी नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सपेंसेस नहीं वो कर पाएंगे, उनके लिए अनाज कम होगा. मोर ओवर उन्हें फिर वो उसका एक हिस्सा किंग को भी देना है. तो बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होता था, एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होने की वजह थी the quality of land was poor. Okay, why quality of land was poor? Again coming back to the same problem, क्योंकि private ownership नहीं है, because वो that land does not belong to the peasant, so he is not improving it, he is not maintaining it, and that is why he is not able to get a good harvest. उसको अच्छी फसल नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से उसका living standard is obviously not good. And because of this he says that in India there are only two types of people. Okay, there are only two societies. One is rich, one is poor. So the poorest of the poor, जो poor हैं वो बहुत poor हैं, जो rich हैं वो बहुत rich हैं. King and the nobles, they are very rich, they have got everything. Whereas this poorest of the poor में आते हैं peasants, किसान, plus artisans, कारीगर. ये सबसे नीचे हैं. बीच में जैसा कि यूरोप में उस समय एक मिडिल क्लास उभर चुकी थी, इंडिया डिड नॉट हैव मिडिल स्टेट देन, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट. ही रोट दैट देयर इज़ नो मिडिल स्टेट इन इंडिया. इंडिया में कोई मिडिल स्टेट नहीं है. मिडिल स्टेट मीन्स कोई मिडिल क्लास नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ पुअर. एंड ही ऑल्सो गोज़ ऑन टू कंपेयर द किंग्स ऑफ मुगल इंडिया एज द किंग्स ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस. उन्होंने उस समय मुग़ल एम्पायर के जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उन्हें कहा है कि वो किंग्स तो ज़रूर हैं, बट देन उनकी जो प्रजा है, जो उस समय जो लोग जिन पे वो रूल कर रहे हैं, दे आर नथिंग बट बेगर्स एंड बारबेरियंस हैं. वो बारबेरियंस आर पीपल हु आर नॉट सिविलाइज्ड. ओके, जो प्रिमिटिव तरीके से रहते हैं, जो कि सिविलाइज तरीके से नहीं रहते, हम उन्हें बारबेरियंस कहते हैं. तो मुग़ल किंग्स को उन्होंने कहा है मुग़ल किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस. ओके, तो राजा ज़रूर अमीर है, और यूरोपियंस ने सुना भी था मुग़ल्स के रिचनेस के बारे में, इंडियन किंग्स के रिचनेस के बारे में. बट ही कम्स टू इंडिया एंड ही सेज येस, किंग्स आर वेरी रिच, किंग्स हैव गॉट एवरीथिंग, बट देन दे आर बेसिकली किंग्स ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस. उनकी जो प्रजा है, जो जनता है, जो लोग हैं, वो बहुत गरीब है, और उनकी दे आर वेरी इम्पॉवरिश्ड. ओके, दे डोंट हैव एनीथिंग. ओके, नाउ
Bernier saw the Mughal Empire, its king, as the king of beggars and barbarians. इंडियन सिटीज़ को उन्होंने किससे कंपेयर किया है, एंड हाउ डज ही फाइंड इंडियन सिटीज़. इन द लास्ट क्लास वी लर्नड हाउ इब्न बटूटा डिस्क्राइब्ड इंडियन सिटीज़ ऑफ दिल्ली एंड दौलताबाद, और वो कितना इम्प्रेस थे उनकी राइटिंग से. लगता है दैट ही फाउंड दीज सिटीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट and he goes on to say that they are prosperous, colorful, all kinds of activities take place in these Indian cities. But here Bernier describes the Indian cities filled with ill air. साफ हवा नहीं है. साफ हवा से मतलब है the hygienic conditions and the living conditions in Indian cities is poor. There's also a difference 14th century का India and 17th century का India. There is a lot of difference in the population, size of population. If you go and see the places near Fatehpur Sikri or places near Agra Fort, or in fact the places near Red Fort in Delhi, Chandni Chowk and all जो इलाके हैं, they're very congested and hygienic conditions obviously we can understand कि उस समय सही नहीं रहे होंगे, because the population size was obviously increasing, population was increasing and living conditions उतने अच्छे नहीं थे. That is why इन cities के जो हालात थे वो बर्नियर को नहीं लगता कि सही हैं. So he says that Indian cities and towns were ruined and contaminated with ill air, and he goes on to compare the rural India, the villages and its fields, he says, are overspread with bushes. वो भी अच्छी तरह से डेवलप नहीं है. The rural India is also not in good shape. The urban India is also not in good shape. Okay, तो वहाँ पे लिविंग कंडीशन सही नहीं है. एंड फॉर ऑल दिस, इन सब चीज़ों के लिए जस्ट वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, एंड ही सेज अगेन, एंड ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीज़न, दैट इज़ क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड. क्योंकि सारी की सारी ज़मीन किंग की है, और वही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. क्यूरियसली, क्या ये सही बात है? अगर हम मुगल्स के उस समय के बारे में जानें, दर इज़ अ चैप्टर मुगल्स के किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में है, उसमें डिस्क्रिप्शन है अबाउट मुगल इंडिया, हाउ दे यूज्ड टू वर्क एंड उनके काम काज के ऊपर है, उसमें डिटेल में है कि कैसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे. एंड अबुल फजल जिन्होंने अकबर के रूल के बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनसे ऑब्वियसली पता चलता है कि ये बात टोटली करेक्ट नहीं थी. पहली बात तो लैंड पर टैक्स नहीं लगता था. somebody if suppose had got 10 बीघाज ऑफ लैंड, तो उस 10 बीघा पे टैक्स नहीं लगता था. टैक्स लगता था ऑन द क्रॉप, ऑन द प्रोडक्शन. उस 10 बीघा से उसने कितनी क्रॉप ग्रो की है, कितना प्रोडक्शन हुआ है. सो इफ़ द प्रोडक्शन वाज 100 kgs ऑफ वीट, द टैक्स वुड बी ऑन दैट 100 kgs ऑफ वीट. उस 100 kgs ऑफ वीट का एक पोर्शन जाएगा किंग के पास. ओके, so if the production was 200 kg, and then obviously one portion of 200 kgs will go to the king. But if there was no production, for some reason there was drought or floods, और कोई बीमारी हो जाने की वजह से अगर क्रॉप फेल हो जाती है, then obviously they did not have to give anything to the king. तो मुगल्स का जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था वो उतना ऑप्रेसिव नहीं था, वो उतना पीजेंट्स को परेशान करने वाला नहीं था. Okay, obviously peasants had to give one part of their earning, but it was not oppressive still, because उनके प्रोडक्शन कितना अनाज उगा रहे हैं उस पर टैक्स लगता था. बाद में ब्रिटिशर्स के समय में ये ऑप्रेसिव ज़्यादा हो गया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली स्टार्टेड लेविंग टैक्सेस ऑन द लैंड एंड नॉट ऑन द प्रोडक्शन. वो ज़मीन पर टैक्स लगाने लगे, और फिर चाहे उस ज़मीन से आप खेती करें ना करें, आपकी फसल बेकार हो जाए, फिर भी टैक्स देना पड़ता था. ऐसा था कॉलोनियल इंडिया के समय में, ब्रिटिश रूल के समय में. बट हेयर मुगल्स का जो डिस्क्रिप्शन है उस समय के इंडिया में, क्योंकि मुग़ल किंग्स के पास सारी ज़मीन उनकी होती थी, इसीलिए इंडिया वाज नॉट सो डेवलप्ड. अबुल फजल ने जैसा डिस्क्राइब किया है अकबर के दौर के बारे में, ही डिस्क्राइब्स द लैंड रेवेन्यू एज रिम्यूनरेशंस ऑफ सॉवरेनिटी. ऑब्वियसली उसको हम एक रेंट नहीं मान सकते हैं. ओके, उसे हम मान सकते हैं इट इज़ अ टैक्स ऑन द क्रॉप. ओके,
तो ये एक कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो ज़मीन राजा की है और उस राजा उस पे हर बार उसका रेंट ले रहा है, वो रेंट नहीं ले रहा है बेसिकली, ही इज़ टेकिंग अ टैक्स एंड दैट टैक्स इज़ नॉट ऑन द लैंड बट टैक्स ऑन द क्रॉप। ओके, एंड बर्निए का ये जो डिस्क्रिप्शन है जो इंडिया का, एंड हाउ इंडिया इज़ बीइंग रूल्ड, यहाँ के रूलर्स कैसे हैं, किंग्स कैसे हैं, कौन सा सिस्टम है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, इसी पर फिर बाकी जो फ़िलासफ़र्स जो हुए यूरोप में, बर्नी वॉज फ्रेंच एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वर अदर ऑब्वियसली फ़िलासफ़र्स, जिसमें मॉन्टेस्क्यू was one of the famous philosophers of that time। उन्होंने अपनी जो थ्योरी डेवलप की है एंड ऑब्वियसली ही हैज़ यूज्ड दिस अकाउंट्स ऑफ बर्नी, बर्नी ने जो लिखा उसके आधार पर उन्होंने ईस्टर्न वर्ल्ड दैट इज़ इंडिया के बारे में जो थ्योरीज डेवलप की। वो मॉन्टेस्क्यू तो इंडिया नहीं आए थे बट उन्होंने इन्हीं फ्रेंच फिलोसोफर बर्निए, फ्रेंच ट्रैवलर बर्निए के जो अकाउंट्स हैं उसके बेसिस पर ही उन्होंने अपना एक आइडिया ऑफ ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, अकॉर्डिंग टू विच रूलर्स इन एशिया, एशिया में ऑब्वियसली दो पार्ट है, एक ईस्टर्न एशिया है जिसमें हम आते हैं और एक ओरिएंटल एशिया है। यूरोप को हम कॉन्टिनेंटल नाम से जानते हैं, ओरिएंटल का मतलब होता है बेसिकली जापान एंड चाइना, एंड ईस्टर्न में ऑब्वियसली इंडिया आता है। Okay, so that is how these words are used. Orient word is used for Japan and China and continental for Europe। तो ये जो थ्योरी जो उन्होंने डेवलप की मॉन्टेस्क्यू ने, and he talked about the idea of oriental despotism and according to which rulers in Asia enjoyed absolute authority over their subjects who were kept in conditions of subjugation and poverty। Okay, तो इन लोगों को ऑब्वियसली गरीबी में रखा जाता था, एंड आर्ग्यूइंग दैट ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग एंड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉन एग्जिस्टेंस, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी एंड एवरी लैंड बिलोंग टू द किंग। ऐसा मॉन्टेस्क्यू ने भी बाद में कहा है। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू एवरीबडी एक्सेप्ट द एम्परर एंड हिज नोबल्स। तो इस सिचुएशन में केवल कुछ ही लोग खुश रहेंगे और वो कुछ लोग हैं द किंग एंड हिज नोबल्स, whereas the जनरल पब्लिक दे barely managed to survive, वो बस किसी तरह से ज़िंदा रह पा रहे थे। ओके, तो ये थ्योरी मॉन्टेस्क्यू ने भी बाद में दी है, एंड मॉन्टेस्क्यू डेवलप दिस थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स रिटन बाय बर्निए। ओके, बर्निए का इन सब लिखने का एक और कारण है, हिस्टोरियंस का मानना है कि ही वॉज राइटिंग ऑल दिस, ही वॉज कंपेयरिंग दिस, एंड उसका पर्पस एक और था दैट ही वॉज इन अ वे गिविंग अ वार्निंग टू द यूरोपियन किंग्स दैट डोंट डू दिस। जैसे इंडिया में हो रहा है वैसा मत करो, अदरवाइज द सोसाइटी विल गेट इम्पवरिश्ड, और ये दिस इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द रूलर्स, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द पब्लिक, ये किसी का अच्छी की भलाई के लिए नहीं है ये काम। इसीलिए ऑब्वियसली दे शुड नॉट ट्रीट द peasants and the artisans in the way they were being treated in India। तो इंडियन सिचुएशन को डिस्क्राइब करते समय उनका एक और मकसद था कि वो यूरोपियन रूलर्स को एक तरीके से वार्निंग दे रहे थे कि आप जो इंडिया में हो रहा है वैसा यूरोप में बिल्कुल ना करें। ओके, कार्ल मार्क्स ऑल्सो ही डेवलप्ड हिज एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। कार्ल मार्क्स ने भी थ्योरी दी है। ही आर्ग्यूड दैट इंडिया बिफोर कोलोनियलिज्म सरप्लस वॉज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। जो कुछ भी होता था सरप्लस, जो सेविंग्स होती थी लोगों की, वो सेविंग्स चली जाती थी किंग्स के पास, और इसीलिए उसको फिर बार बार इन्वेस्ट करने का, जो इन्वेस्ट होनी चाहिए सरप्लस, वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता था, एंड बिकॉज दैट वॉज कलेक्टेड बाय द स्टेट। This led to the emergence of a society that was composed of a large number of autonomous and egalitarian village communities. Imperial court presided over these villages communities respecting their autonomy. So it's given a complex theory. We don't have to go into detail of this theory. What we can say is that obviously a lot of philosophers and thinkers, and इसमें obviously there is ऐसा नहीं है कि बर्नी ने जो भी लिखा है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। देयर इज़ अ डिफरेंट लॉजिक। हम अबुल फजल ने जो लिखा है उसकी लॉजिक भी सही है, एंड दिस लॉजिक दैट पीपल वर नॉट डेवलपिंग देयर लैंड
and that is one of the biggest reason of India not progressing during that time. Okay, so obviously he is not denying the fact that kings and nobles are very rich, but the general public is poor, and the reason is lack of ownership of land. And he has called Mughal kings as the king of beggars and barbarians. Okay, and why people were not developing the land, and landowners cannot pass their land to their children, therefore they did not invest in the land, they did not maintain or improve the land. Okay, and then he goes on to conclude that India does not have a middle state, यहाँ पर middle class नहीं है, and that is also one of the reason why India was not in a very good condition. Okay, he's also written about few more things. He's written about social reality, manufacturers के बारे में उन्होंने लिखा है. Okay, he has written about imperial कारखानास. So there are few other things that he has written about. He has written about child sati, which was in practice at that time, and even Batutaka, there is one account about slavery of women. So there are few other things which are still left in this chapter. I think there will be one more class to cover up this chapter, and that will obviously be the last class. Okay, so I think I'll leave it here, and so that I can take up few other topics which are left in the next class. That obviously will be the concluding class. Okay, so that's all in this class. Thank you very much.